a well-known writer of Hindi literature. And here I am giving you the full explanation of a question answer, thoughts, life skills, writing skills, and everything will be in Hindi. We should know the summary of the story. Summary of the story is that here is a writer Premchandra and Baldev is one of the very bosom friends. बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. कौन कौन? Premchandra and Baldev. So Premchandra was simply a writer and Baldev becomes a very rich man. So one day this Premchandra got a chance to meet with the district officer. And everybody consider it that if he will meet with the district officer, he can take the advantage of it. अगर वो district officer से मिलता है तो वो इसका बहुत सा advantage ले सकता है. But he was thinking a lot and he just take the suggestion of many friends. But at last he decided to meet with the district officer. अच्छा relationship है district officer के साथ. So everybody wanted him to do some of the work of him, right, and take the favor of him. सभी उसका favor लेना चाहते हैं, but he was not in that condition. वो प्रेमचंद्र वो किसी के favor नहीं लेना चाहता है. So one day his own very best friend came. It was Baldev. एक दिन बलदेव आता है. Actually his son was involved in a case. उसका son किसी case में involved होता है. That's why he came to take the help from a district officer. A district officer. So what happened? So after that, there is a Baldev and his son who was involved in the same false case. So he was a childhood friend and he wanted to take help from but he forgot, and after some times he forgot it. उसी को वो पूरा भूल जाता है. और भूलने के बाद क्या होता है कि वो that is district officer helped him in any way and he becomes and he reprimanded the police also. उसको बहुत डांट मिलती है. So last one, what happened? His friend came to him and given him the reward. उसको reward मिलता है, but he was not the person who want to take the reward. That's why the title of this story is called Undeserved Reward. So that we will discuss the question answer that will be written in the 30 words. The first question is, why is the narrator a secret admirer of a district officer? A narrator क्यों secret admirer है district officer का? The answer is there. The narrator is a secret admirer of a district officer because his keen interest in a history. वो बहुत interested था history में. And he has also done some of the research in history and in old coin. उसने research भी कर रहे थे old coin में और history में research कर रहे थे. And he was a man of a learning. और वो he was also. That's why this narrator was a secret admirer of a district officer. Here is a secret admirer means silently किसी का बड़ाई करना. That's why it is called the secret admirer of a district officer. Second question is there. Why did the Indian officer do when his father-in-law insisted on prolonging his daughter's stay at his house? What Indian officer did? Indian officer ने क्या किया? जब उसके father-in-law मीन्स ससुर जी ने बेटी को जाने नहीं दिया and he requested to stay more days in a home. Do you know what he did? The Indian house when his father-in-law insisted on prolonging his daughter's stay at his house. He just came and he just started forcing
to leave his daughter, leave his wife. He issued summon for arrest of the father-in-law. उसने समन भी अरेस्ट वारंट भी निकलवा दिया फादर इन लॉ के अगेंस्ट में. द मैन केम, इट मीन्स हिज फादर इन लॉ केम एंड स्टार्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस. आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और बाद में वो बहुत सी क्षमा मांगने के बाद उसको क्षमा किया. When third question is, when the narrator was invited by the district officer to see him, his friends said that it was an insult to him. Why? जब नरेटर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इनवाइट किया तो सभी उसके फ्रेंड ने क्यों बोला कि यह इंसल्ट है उसके लिए. When the narrator was invited by the district officer to see him, his friend gave different views. जब नरेटर को इनवाइट किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, सो हिज फ्रेंड्स गिव अ डिफरेंट व्यू. सभी फ्रेंड्स ने बहुत से व्यूज़ दिए. दे सेड दैट इट वाज हिज इंसल्ट. किसी ने बोला कि ये तो इंसल्ट है. अकॉर्डिंग टू देम, इफ़ ही वाज कीन टू मीट हिम ही शुड कम टू हिमसेल्फ. सभी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग टू ऑल दिस फ्रेंड, अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहुत मिलने के लिए बहुत उत्सुक है तो उसको खुद ही आना चाहिए. They said that these officers never come out of his superiority and thought that other persons were ordinary. और वो लोग सभी बोलते थे कि ये ऑफिसर्स क्या है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और सभी को ऑर्डिनरी समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Why was the narrator happy that a district officer had not come to his house himself instead of calling him? नरेटर बहुत खुश था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसके घर पे नहीं आया. क्यों? द नरेटर वॉज हैप्पी दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिड नॉट कम टू हिज हाउस हिमसेल्फ बट सेंट फॉर हिम बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल टू गिव हिम प्रॉपर वेलकम. वो बहुत खुश था क्योंकि नरेटर, इट मीन्स प्रेमचंद्र, could not give him proper welcome. वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अच्छी तरह से वेलकम नहीं कर पाता. Even he did not have even a proper chair or expensive cigar to serve him. उसके घर पे ना ही अच्छा चेयर था और ना ही सिगार था उसको वेलकम करने के लिए. Fifth question is, I considered that is downright mean and dishonest. This is the extract from the story. ये extract है, one part of a story, and these lines have been taken from the story. I consider this as downright mean and dishonest. इसका मीन्स होता है कि मुझे लग रहा है ये downright mean, बहुत तुच्छ और dishonest. What did narrator consider to be mean and dishonest? narrator को क्या लगता है mean यानी कि तुच्छ और dishonest narrator को क्या लगता है? I consider this as downright mean and dishonest. The narrator did not like to take help and advantage of relationship with the district officer. क्योंकि नरेटर कोई भी हेल्प और कोई भी एडवांटेज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से नहीं लेना चाहता है. टेकिंग फेवर्स फ्रॉम द हाई ऑफिसर वॉज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल. किसी हाई ऑफिसर से सहायता लेना या फिर हेल्प लेना वो उसके सिद्धांत के अगेंस्ट में था. इसीलिए उसे लगा कि किसी से हेल्प लेना इट इज़ रियली मीन एंड डिसऑनेस्ट, बहुत तुच्छ है और डिसऑनेस्ट है. Sixth question, how did the narrator and Baldev become friends in their childhood? नरेटर प्रेमचंद और बलदेव बचपन में दोस्त कैसे बने? द नरेटर एंड बलदेव हैड स्टडीड टुगेदर. वो दोनों साथ पढ़ते थे. दे वेर देन 8 और 9 years old. वो उस समय कितने साल के थे? 8 और 9 साल. बलदेव वॉज डल माइंडेड वेयर नरेटर वॉज वेरी इंटेलिजेंट. बलदेव कैसे थे? वो बहुत डल थे और नरेटर बहुत इंटेलिजेंट. बलदेव नेवर अंडरस्टूड एनीथिंग इन इंग्लिश और इन द क्लास. बलदेव कुछ नहीं समझता था क्लास में. द नरेटर बिगेन टू हेल्प हिम इन स्टडीज एंड ही बिगेन टू डू वेल. नरेटर यानी कि प्रेमचंद ने उसे बहुत हेल्प किया. ठीक है. ही ऑल्सो गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क एंड इन द सेम वे Baldev also take the lesson from the Premchand and
he started doing well in his study. Seventh question. Why had the police involved Baldev's son in false case of डकैती? पुलिस ने Baldev son was a well-built, stout person. बलदेव का सन कैसा था? Really he was a very strong and well-built. बहुत लंबा चौड़ा और तगड़ा इंसान था. Many a times he quarreled with the police. बहुत बार वो झगड़ा भी किया था किसी से, पुलिस से उसकी झगड़ा हो चुका था, क्वारल हो चुका था. द पुलिस वॉज सर्चिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, किसी तरह से उसको किसी क्रिमिनल केस में फंसा दे. सो दिस टाइम दे गॉट अ चांस टू इन्वॉल्व इन अ फॉल्स केस एंड दिस टाइम व्हाट इज दैट, डकैती हैज़ बीन हैपन इन द सेम विलेज. डकैती हुई उसी विलेज में और पुलिस को चांस मिल गया कि उसके बच्चे को, उसके बेटे को उसी फॉल्स केस में फंसा दिया. See, Baldev presented many arguments before the narrator to convince him to speak to the district officer. बलदेव बहुत से आर्गुमेंट दिया नरेटर को कि तुम प्रेमचंद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कन्विंस करें या फिर टेक द फेवर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से फेवर ले. State a few arguments, identify one which you think to be the most convincing, give reason to justify your choice. आप कुछ आर्गुमेंट दीजिए, ठीक है, और आप बताइए कौन सा आर्गुमेंट बहुत कन्विंसिंग है. बलदेव गिव सेवरल आर्गुमेंट टू कन्विंस द नरेटर. बलदेव ने बहुत सा आर्गुमेंट दिया नरेटर को कन्विंस करने के लिए कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से हेल्प ले. ही टोल्ड दैट हिज सन वॉज इनोसेंट. उसने बोला भी कि मेरा सन तो इनोसेंट है. He also told that the entire family and son's life would be ruined. उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा. Even entire family would be ruined. Ruined means बर्बाद होना. पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा. He appealed that he approached him for help only because his son was innocent. उसने अपील किया, उसका बहुत रिक्वेस्ट किया और वो बोला भी कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ. अप्रोच हिम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि उसका बेटा इनोसेंट है. ही कुड नॉट हैव डिस्टर्ब हिम. अगर वो इनोसेंट होता, अगर इनोसेंट वो नहीं होता तो वो कभी प्रेमचंद के पास नहीं आता. एंड सन्स मदर वॉज क्राइंग एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस हिज अरेस्ट. और सन की मम्मी भी, उसकी मम्मी भी कुछ नहीं खाया जब से वो अरेस्ट हो गया. द नरेटर, व्हाई कुड ही हैड डन इफ हिज ओन सन इनोसेंट वॉज सन वॉज अरेस्टेड लाइक दैट. बलदेव ने नरेटर को बोला, प्रेमचंद्र को भी यह भी बोला कि वो क्या करता अगर उसका सन भी, उसका भी बेटा इनोसेंट रहता और कोई अरेस्ट कर देता, तब तो लेना ही पड़ता उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का हेल्प. इन दिस ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, द लास्ट आर्गूमेंट वॉज मोस्ट कन्विंसिंग. कौन सा था ये जो लास्ट आर्गूमेंट था ना, वो बहुत कन्विंसिंग. दैट what could he have done if his own son was arrested like that? This is the most convincing. If it would have given the matter of a narrator's own innocent son, he might have approached the district officer for the sake of his son. It was a matter of innocent life. इसीलिए लास्ट जो आर्गुमेंट था वो बहुत कन्विंसिंग था. एंड और उसका बेटा जो था इनोसेंट था. दैट्स वाई ही केम फॉर टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रेमचंद्र एंड ही ऑल्सो विल टेक द फेवर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. हॉट्स में देखिए, आई फील सॉरी एट द मेंटेलिटी ऑफ कंट्रीज मैन सेज द नरेटर. व्हाट डज द नरेटर फील सॉरी फॉर इट? आई फील सॉरी एट द मेंटेलिटी ऑफ अ कंट्री मैन. मुझे बहुत ख़राब लगता है कि किसी विलेजर्स के मेंटलिटी को देख करके. एंड वाई डज द फील सॉरी, और नरेटर को क्यों दुख होता है किसी विलेजर्स के मेंटलिटी को देख करके? आंसर है, द नरेटर फील्स सॉरी एट द मेंटलिटी ऑफ कंट्री मैन. द वीकर ऑलवेज गिव्स टू मच रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्गर और रिच. क्योंकि वीक पर्सन यानी कि बहुत कमज़ोर पीपल
हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं किसको, स्ट्रांग को और रिच को, पैसे वाले को और जो बहुत स्ट्रांग है, जो बलशाली है, उसको बहुत। दे थिंक दैट दे नीड देयर हेल्प टू लीड अ स्मूथ, और वो लोग सोचते हैं कि वो उसको स्मूथ लाइफ जीने दे। दो दे सेल्डम गेट देयर हेल्प, समटाइम्स क्या होता है वो हेल्प भी करते हैं। पीपल शुड लर्न टू लिव इंडिपेंडेंट एंड डिसेंट लाइफ वाट एवर कंडीशंस दे आर। इसीलिए सभी को जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसी कंडीशन में उनको जीने देना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लाइफ स्किल, एवरी डिजर्विंग एक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। Likewise, every reward should be well served. Does the statement always holds truth in the real life? क्या आपको लग रहा है कि ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, एवरी डिजर्विंग एक्शन शुड बी रिवॉर्डेड, हर एक एक्शन जो कि डिजर्विंग एक्शन है, जो अच्छा एक्शन है, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? एवरी डिजर्विंग एक्शन शुड बी रिवॉर्डेड एंड एवरी रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू द वेल डिजर्व पर्सन। हर एक एक्शन को रिवॉर्ड मिलना चाहिए और हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बट दिस स्टेटमेंट डज नॉट ऑलवेज होल्ड द ट्रूथ इन रियल लाइफ। ये हम लोग को पता है कि ये हमेशा हर एक एक्शंस को रिवॉर्ड नहीं मिलता है और हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को रिवॉर्ड नहीं मिलता है। फॉर इंस्टेंस, इट डिजर्व रिवॉर्ड वेयर क्रिकेटर्स आर ओवर रिवॉर्डेड। हमारे कंट्री में हॉकी प्लेयर्स को कभी भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बट क्रिकेटर्स को देखिए आप, दे विल ऑल्सो गेट ओवर रिवॉर्डेड। वन शुड लिसन टू ऑल बट टेक one's own decision guided by both intellect and conscience। हर एक को क्या होना चाहिए, सभी का सुनना चाहिए, बट क्या करना चाहिए, अपना डिसीजन खुद से लेना चाहिए। और क्या यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को और कंसाइंस को, अपने दिमाग दिमाग से ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। इसको डिस्कस करना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वन शुड लिसन टू ऑल, सभी को क्या करना चाहिए, सभी की सुनना चाहिए, बट टेक हिज ओन डिसीजन गाइडेड बाय बोथ इंटेलेक्ट एंड साइंस, और वो डिसीजन खुद का लेना चाहिए जो कि अच्छा डिसीजन हो और अपने दिमाग से सोच करके लो। अदरवाइज लेटर ऑन वन हैव टू रिपेंट ओवर द डिसीजन। अदरवाइज क्या होगा, रिपेंट करना पड़ेगा, यानी कि पछताना पड़ेगा अगर आप सोच समझ करके डिसीजन नहीं लिए, या फिर किसी के बात पे आपने डिसीजन ले लिया। इन द स्टोरी, नरेटर डिसाइडेड हेल्प बलदेव फ्री from his son from the police, but later he regretted doing so because he knew that his son was not a good person, and that was reason the district officer did not consider it proper to interfere in the case। इस स्टोरी में भी वही हुआ, बलदेव फ्री हिज सन फ्रॉम द पुलिस, बलदेव का सन क्या हुआ, फ्री हो गया फ्रॉम द पुलिस, बट लेटर ही रिग्रेटेड, बाद में उसको लगा डूइंग सो बिकॉज ही न्यू दैट हिज सन वॉज नॉट अ गुड पर्सन, उसको ऐसा लगता था कि उसका सन बहुत अच्छा नहीं है। That was the reason district officer did not consider it proper to interfere in the case. That's why district officer को इन्वॉल्व करना इस केस में बहुत ही अच्छी बात नहीं थी। राइटिंग स्किल है, ये तो लास्ट में है। बलदेव इज एक्सट्रीमली रिजवाइज्ड एट द हेल्प rendered by his old friend. On the behalf of Baldev, prepare a thank-giving card for the narrator thanking him for help. एक कार्ड बनाना है आपको जिसमें कि आप थैंक बोल रहे हो प्रेमचंद्र को कि आपने बहुत कुछ किया मेरे बेटे को बचाने के लिए। सो आप लिखें कैसे, सबसे पहले डियर प्रेमचंद, एक्सेप्ट माई थैंक्स फॉर वॉट यू हैव डन टू सेव माई सन्स लाइफ। ठीक है, आप मेरा थैंक्स को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया मेरे बच्चे के लाइफ को बचाने के लिए। आई नो थैंक्स इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर सच टाइप ऑफ द हेल्प। थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है, शब्द है तुम्हारे काम के लिए। यू हैव ऑल्सो प्रूव्ड दिस डिक्टम राइट दैट अ फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तुमने डिक्टम को प्रूव कर दिया कि दिस ये सही है, अ फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सचमुच का वही फ्रेंड होता है जो कि उसके नीड में उसका हेल्प करे।
सेकेंड है, यू आर नरेटर, यू आर ओवरकम विद द फीलिंग्स ऑफ अ गिल्ट आफ्टर बलदेव एंड हिज सन लिव योर हाउस. Write a letter to Baldev expressing your guilt over accepting the honor that you did not deserve. आप नरेटर हो और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने बलदेव के बच्चे को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, बट बलदेव ने क्या किया, आपको रिवॉर्ड भी दिया एंड यू नो दैट यू डू नॉट डिज़र्व द रिवॉर्ड. आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट आपको लिखना है 5 मार्च 2020. Dear Baldev, I really overwhelmed to see that your son was released by police because he was innocent. मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे बच्चा रिलीज़ हो गया पुलिस से क्योंकि वो इनोसेंट था. He deserved that, और वो डिज़र्व करता था. बट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मैं बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ कि दैट आई हैड डन नथिंग एनी फेवर, और मैंने तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं किया. यू नो वेल माई प्रिंसिपल दैट आई डू नॉट लाइक टेकिंग एनी ऑब्लिगेशन. आप पता ही आपको मेरा प्रिंसिपल, मेरा सिद्धांत क्या, मैं कभी भी किसी भी ऑब्लिगेशंस को नहीं लेता हूँ. सो आई डिड नॉट विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी नहीं गया था. योर सन हैड बीन रिलीज्ड बिकॉज ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम. उसने कोई क्राइम नहीं किया था, उसने उसको छोड़ दिया गया. हैंस ही वॉज नॉट पनिश्ड, और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिला. आई एम रियली फीलिंग गिल्टी फॉर एक्सेप्टिंग द रिवॉर्ड, और मैं बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने मुझे रिवॉर्ड भी दिया एंड मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, विच आई डिड नॉट डिज़र्व, और ये रिवॉर्ड का मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ. आई वुड लाइक टू सेंड बैक ऑल योर गिफ्ट्स दैट यू ब्राउट. जो आपने लिया था मैं सभी आपको भेज रहा हूँ. Thanks for watching. If you like, share, comment and subscribe the channel. Thanks again.